السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، محلے داروں کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے اچھے مل جائیں تو زندگی گلزار، برے مل جائیں تو زندگی بیزار۔ یہ گلزار اور بیزار کے درمیان معاملہ کیا ہے، یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہی محلے میں رہنے والے چند معزز شہریوں سے۔ جی السلام علیکم۔ معلوم نہیں کہاں پہ گلزار بھائی رہتے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ بیزار کا ہی چہرہ دیکھا ہے۔ ہائے لطیفی صاحب، ادھر دیکھو گلزار، سو سویٹ۔ یہ اپنا میسو کا تھال گھر رکھ کے آ کرو، سو سویٹ۔ ہم یہاں آتے ہیں محلے کی مشکلات اور مسائل کے ازالے کے لیے، یہ یہاں علیحدہ ہی مٹھائی کی دکان کھول کے بیٹھ جاتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے، اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ارے بھائی، میاں بیوی رہے نا، ہیر رانجھے کا پارٹ ادا نہ کرے نا۔ ہیر رانجھے کی بھی اگر شادی ہو جاتی تو کبھی ان کے منہ سے سو سویٹ نہ نکلتا۔ آپ کی اہلیہ آپ کو کبھی کہتی نہیں ہے نا سو سویٹ، اس لیے آپ تھوڑے سے جیلس ہیں۔ میں دل سے محبت کرتی ہوں لطیفی صاحب سے، مجھے ایسے چونچلے نہیں آتے۔ گھونگھٹ نکالیے۔ اچھا جی، ساتھ کٹا دلوں پیار، ہر ویلے انہاں دے گھروں بھانڈے وجن دی آوازاں آ رہی ہوندیاں نے۔ تو ٹھیک ہے نا، ہم پرات بجا کے تو اپنی دلہنیا کو گانا سنا رہے ہوتے ہیں۔ گھونگھٹ نکالیے۔ جنید میاں، جس گلزار کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اگر محلے میں اس چغتائی جیسے لوگ رہائش پذیر ہوں تو گلزار بھی بیزار بن جاتے ہیں۔ لطیفی زبان سنبھال کر بات کرو۔ سادہ لطیفی ہم نے کبھی ان کے منہ سے بھی نہیں سنا۔ لطیفی صاحب بولا کرو۔ وہ کیا ہے؟ جنید انکل، آپ انہی سے پوچھ لینا جو بات بے بات آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ابے او بگولے کے بچے، یہ میرا بچہ ہے، بگولے کا بچہ نہیں ہے۔ ہائے، تو تم کسی بگولے سے کم ہو۔ گھونگھٹ نکالیے۔ اچھا جی، جنید میاں بیٹھ جا بے بگولے۔ اوے بیجا چکتائی، بات اٹھ نہیں رہا، تو اٹھ نہیں رہا۔ باطل کے خلاف حق کی آواز اٹھنی چاہیے، ذرا اٹھ کے۔ مقدس میں نو ڈکینا۔ بس بیٹھ جائے مقدس میں نو ڈکینا، بیٹھ جائے۔ اچھا جی، بعد میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ معاملہ کیا کہتے ہیں یہ بتائیں؟ جنید میاں، وہی بدماشی، وہی دھونس۔ ہماری گلی کے پچھواڑے میں صرف ایک ہی چھوٹا سا پارک ہے، کوئی 18 مرلے کے قریب۔ اچھا، موصوف نے اس میں قبضہ جما رکھا ہے۔ کون سا قبضہ؟ جنید میاں، ساری سردیاں وہاں پہ کرسیاں بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بھائی سارے محلے کا وہ پارک ہے، آپ اکیلے کا ہے۔ پھر کبھی قالین دھونے ہیں تو سوکھنے کے لیے پارک میں ڈال لیے۔ ابھی کبھی بھابھی ہماری نے دوپٹے رنگوا لیے ہیں تو وہ سکھانے کے لیے پارک میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ابھی کوئی مہمان آ گئے ہیں تو وہی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی جانور خرید لیا ہے تو وہ بھی پارک میں باندھا ہوا ہے۔ ارے بھائی، سارے محلے کا پارک ہے، سب کو استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یا صرف آپ کے ہی استعمال کرنے کے تو لیے؟ آپ استعمال کریں نا، اس کی کیئر ٹیکنگ کون کرتا ہے؟ میں۔ اس کے لیے مالی کس نے رکھا ہے؟ میں نے۔ ویسے سوری ابو، مجھے بولنا تو نہیں چاہیے لطیفی چچا، محلے میں کتنے لوگ ہیں؟ میرے ابو کے کہنے پہ وہ واٹر والی گاڑی آتی ہے اور پورے پارک میں پانی بھی لگا کے جاتی ہے۔ یعنی دونوں باپ بیٹا اپنے طور پہ شبلی فراز اور شہباز گل بنے ہوئے ہیں، اپنی تعریفیں ایک دوسرے کی کرتے جا رہے ہیں۔ تعریف 2 منٹ ٹھہرو۔ جنید میاں، بات یہ ہے کہ اگر کسی کے کہنے پہ کو پانی والی ٹینکی آ گئی ایک دفعہ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پارک کا مالک وہ ہو گیا۔ تو پودے کون لگواتا ہے وہاں؟ میں لگواتا ہوں میں۔ ارے تو اپنے جو 2-3 پودے لگوائے ہیں نا، اٹھا کے اپنے صحن میں لے جا۔ پارک سارے محلے کا ہے، خبردار آئندہ وہاں پہ کرسیاں بچھائیں یا چارپائی بچھا کے بیٹھنے کی میں نے وہاں بورڈ لکھا ہوا کہ تم لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ تو کوئی کیسے آئے گا اگر تم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اڈا بنا کے اپنے مہمانوں کو بٹھا کے؟ تو کوئی شریف آدمی جو ہے وہ کیسے اس پارک میں بیٹھے؟ لطیفی صاحب آ جائے کرے محلے دار، میں کیا انہیں منع کرتا ہوں؟ جنید میاں، آپ اگر بات کھل گئی ہے تو پھر بتانی ہی پڑے گی۔ نکر پہن کے وہاں پہ چارپائی بچھا کے لیٹا ہوتا ہے، کون شریف آدمی گھسے گا وہاں پہ؟ ٹھیک ہے بھائی نکر کو کیا تکلیف ہو گئی؟ تو اب نہ نکر پہنا کرے نا۔ اور سر میرا زیادہ عرصہ جو ہے وہ یورپ میں گزرا ہے۔ او خدایا، یورپ! کبھی نیکر میں لیٹے ہوئے دیکھ لو اس کو، لگتا ہے کوئی کچھوا الٹا کر گیا ہے۔ اے ملتان دا میں یورپ رہ لے ہی۔ نہیں، میری بات سنیں، دیکھیں پاک بہرحال ایک پبلک پلیس ہے نا، آپ کے گھر کے قریب ہے،
آپ مالی کی تنخواہ دیتے ہوں گے, اس کی مینٹیننس کرواتے ہوں گے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف اپنے تصرف میں ہی رکھیں. جنید بھائی یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ پبلک پارک میں چارپائیاں بچھا کے بیٹھ جائیں؟ لطیفی صاحب اگر 1 مہینہ میں اس پارک پہ پیسے نہ خرچ کروں تو وہی پارک قبرستان لگنے لگ جائے. او بھائی جو تو 1200-1300 روپیہ مہینے کا خرچ کرتا ہے نا وہ نہ کر. اور بھائی 1200-1300 ہر بدلتے موسم کے ساتھ وہاں پھول لگواتا ہوں. وہ پھول کوئی گولڈ کے نہیں ہوتے, ہم بھی جانتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 30-35 روپے کا بہت بھلا پودا آ جاتا ہے پھولوں کا. انہی پودوں سے پھول توڑ کے چچی اپنے گجرے بناتی ہیں, اپنے جوڑے میں لگاتی ہیں. آج تو پیاری بھی تو لگتی ہے نا, گوبر نکالیے. میاں بات یہ ہے کہ وہ سب کی پراپرٹی ہے. جو سوسائٹی کا باغ ہے, جو پبلک پارک ہوتا ہے, وہ سب کی پراپرٹی ہوتا ہے. اگر کسی کو پھول اچھا لگا اس نے توڑ لیا, اگر کسی کو کوئی پھول چاہیے سونگنے کے لیے وہاں پہ اس کا پودا لگا لیا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہاں پہ آپ چارپائی بچھا لیں یا کرسیاں جما لیں. یہ لطیفی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے چدائی صاحب آپ کو بتائی نہیں ایک بات, آپ کا بیٹا پارک میں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پیتا ہے. اب بتائیے. نہیں لگ رہا ہے کہ آپ پارک کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں, آپ نے پارک کو, پبلک پارک کو اپنی ذاتی ملکیت کیسے بنا لیا؟ سر نہیں بنایا, میں نے کون سا نہیں بالکل غلط بات. زیادہ تر معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ پارک پر آہستہ آہستہ قبضہ جمایا جاتا ہے. پہلے تھوڑا بہت وہاں پر کوئی بیٹھک کا اہتمام کیا جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. آپ کو کیا بتائیں, آج صبح آپ کی بھاوش کہنے لگیں کہ لطیفی صاحب ہمیں لکھنؤ کا مشرا پارک بہت یاد آ رہا ہے, وہاں ہم اکثر جایا کرتے تھے. آپ کی بھاوش امبریلا فراک پہن کے اور ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہن کے آگے آگے بھاگا کرتی تھی, اور ہم ایک چھوٹی سی چھڑی ہاتھ میں پکڑ کے ان کے پیچھے بھاگتے تھے. اور رومانٹک, کبھی یہ گرتی تھی, کبھی آپ گرتے تھے, کبھی یہ گرتی تھی, کبھی آپ گرتے تھے. سو سویٹ. انہوں نے سٹاں لگ گئی نے, تو سو سویٹ. ہاں چچا چھوٹی سی چھڑی لے کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے, جیسے گاؤں کا بچہ چھوٹی سی بکری لے کے نہیں چرانے کے لیے نکلتا. یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. کول ڈاؤن دیکھا ہم نے, جتنی تم خون کی ندیاں بہاتے ہو. بھائی کرو, شرم حیا بھی سکھاؤ. بالکل, لکھنؤ کی مہارانی کو بکری کہہ دیے. بات یہ نہیں ہے کہ جگت اچھی نہیں, جگت اچھی ہے, مگر یہ تو دیکھیے ایک لکھنؤ کی مہارانی, دیکھو ذرا پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھو, نہیں بالکل ضرورت نہیں تھی کسی کی کہ کوئی ایک لفظ بھی منہ سے نکالے. اور لکھنؤ کے واحد نواب ہیں جو کرائے کے گھر میں رہتے تھے. بے شک کرائے کا گھر تھا, مگر ماشاءاللہ تھا تو اتنا بڑا. یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم نے وہی تاریخ کو دہرانے کے لیے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے پارک میں جائیں. ہماری سوسائٹی میں بھی گلی کے پچھواڑی میں تو ہم وہاں گئے ہیں, وہاں پہ گیلے قالین بچھے ہوئے. ہم نے سوچا کہ شاید کسی کو پتا چل گیا کہ مہارانی آ رہی ہے, اس لیے قالین بچھا دی. ہم اس کے اوپر چلنا شروع ہو گئے تو موصوف چھت پہ چڑھے ہوئے بولنا شروع ہو گئے کہ قالین گندے کر رہے ہو, ہم نے سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے ہیں, گیلے قالین پہ جوتا لے کے چل نکلے ہو. اور بھائی ہم نے کہا کہ آپ کے قالین ہے تو اپنے گھر کی چھت پہ ڈالیے, یہاں کو بچھائے ہوئے ہیں. اس بات پہ لے دے شروع ہو گئی اور یہاں آپ کے پاس آ گئی. ان سے کہیں کہ اپنی جو گھر کی ضروریات ہیں وہ گھر سے پوری کریں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ جو احسان کرتے ہیں نا, جتنے مالی پہ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ رہنے دیں. آپ سب لوگ ماہانہ چندہ جمع کریں, کتنے پیسے آئیں گے, 100 روپیہ 200 روپیہ ڈال کے آپ کسی مالی کا انتظام کر سکتے ہیں, اور پارک سب کی ملکیت ہونا چاہیے. سر یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جب پیسے اکٹھے کرنے کی باری آتی ہے بھی مالی کو دینے ہیں تو یہی لطیفی سب سے پہلے بولتا ہے, کہتا ہے کہ جناب میں کیوں دوں, میں مجھ سے کام کروا لو, میں گوڈی بہت اچھی کرتا ہوں. گوڈی کروائیں لطیفی صاحب سے. دیکھیے جنید میاں, اگر کسی محلے دار کے پاس ہنر موجود ہے تو اس سے فائدہ لیجئے. بھائی اگر آپ کو ایک شاہی باغبان مفت میں گوڈی کر کے دینا چاہتا ہے تو آپ انکار کر رہے ہیں, بدنصیب ہیں آپ. ایسے محلوں میں تو زلزلے آتے ہیں. سن رہے ہو بٹ, سن رہے ہو, جی ابھی پچھلے ہفتے آیا زلزلہ. ہم نے کہا کہ یہ صرف
इसलिए ये मुसीबत इस मोहल्ले पे आती है कि आप लोगों को हमारी कदर नहीं है। तो आगे से हंसना शुरू हो गए। लतीफी साहब मैनू ताना ना दियो, तुहानू सुई चुभे ते सब तो पहले बट हुंदा तुहाडे घर। आंदा नहीं सुई चबोंदा ही बटते। सबसे पहले भट्ट साहब घर जाके कहते हैं लो जी मैं आ गया है आदत आस्ते मंगाओ चाह। ना केड़ी सुई चबोती तुहानू जी? जुनैद मियां हमने कहा कि आपकी खुशनसीबी है कि आपके मोहल्ले में शाही खानदान के फर्द रहते हैं। तो कहने लगे शाही सुपारी खाने से शाही खानदान नहीं बन जाता, उसके लिए लंबे चौड़े लवाजमात चाहिए होते हैं। देखिए चुगताई साहब ये कोई मामूली मसला नहीं है। किसी भी कोई भी सरकारी अमलाक हो वो किसी एक शख्स के तसर्रुफ में आ जाए तो उसको कब्जा तस्वुर किया जाएगा। सर मेरे हर सीधे काम को उल्टा समझा जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता। नहीं देखें आपने उसको अपनी जाती जागीर समझ लिया पाक को, वो सारे लोग परेशान हैं, वो वहां पे वॉक करना चाहते हैं, उनकी सेहत देखे, वॉक ना करने की वजह से वो देखे। जुनैद साहब आप बड़ी परेशानी ये है कि हम वहां पे जाते हैं पुलिस स्टेशन तो हमारी कोई सुन नहीं रहा, हम पर्चा दर्ज करवाना चाहते हैं। नहीं नहीं चले पर्चे तक मोहल्लेदार आपस में पहुंच जाए तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है, आपस में बैठ के सुलझा ले मामला। हाँ जी, वैसे भी बाप बेटे को हथकड़ी लगी बहुत बुरी लगेगी। तो हथकड़ी लगी अच्छी किसको लगती है? और क्या वैसे भी बुरी लगी अगर तो फिर क्या फर्क पड़ता है? जाहिर है जिन्ना खादियां गाजरा डिडो ना दे पीड़। हथकड़ी तो हथकड़ी होती है, कोई वो कंगन थोड़ी होती है जो खूबसूरत लगे। अब वैसे भी ये कौन से जावेद हाशमी है जिन्होंने हथकड़ी लगा के ऐसे कर सिर्फ हथकड़ी नहीं, इनू तो टाई भी बुरी लगन डई है, पैंट शर्ट भी बुरी लगन डई है, अच्छी कड़ी चीज लगेगी इनू। लतीफी साहब जिस दिन मोहल्ला छोड़ दिया ना मैंने, ना रौनक रहेगी ना पार्क। अबे कौन सी रौनक, तू बड़ा सुबह सुबह उठ के मोहल्लेदारों को बंदर का तमाशा दिखाता है। पार्क क्यों नहीं रहेगा, सरकारी पार्क है, तूने कौन सा लपेट के साथ ले जाना है? अपने कालीन उठा और निकल यहां से। ना करें लतीफी साहब ऐसी बातें, मिलके रहे, मिलके रहना है, छोटी छोटी बातों पे इस तरह लड़ाई को बढ़ाते नहीं है, खत्म करने की बात करें। ਛੱਡੋ ਨਾ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਸੋਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਤੇ ਮਨਾਣੀ ਹੈ। So sweet। गंगा जी निकाल के। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे बलोचिस्तान में राजान एक तरीका वो भी बारबेक्यू का है और वो आज भी बलोचिस्तान में बहुत शौक से खाते हैं। वो पत्थरों पे गोश्त को पकाते हैं। यार जुनैद, ये खाने पीने के मामलात में जब हम छोटे छोटे थे तो ये जो बारबेक्यू अब आपको हर जगह नजर आता है, दुकानों में भी और घरों में भी बेशुमार। हाँ जी। ये मुझे याद है पूरे शहर में एक कदी दुकान होती और वो भी दुकान कम, रेडियां ज्यादा होती थी। एक रेडी पे छोटा सा पुराना पंखा लगा होता था, इतनी सी अंगीठी रखी होती थी। बारबेक्यू रेडी पे वो पंखा भी बाद में आया, पहले वो हाथ से होता था, वो पंखे के ऊपर दिया होता था, बिल्कुल इधर हाथ से वो। बिल्कुल, यानी पंखा जब आया वो भी एक जिद्दत थी। किसी के पास था किसी के पास नहीं। हाँ, हमारे गुजरांवाला में मुझे याद है हाजी अल्लाह रखा एक होते थे, फौत हो गए हुए हैं, छोड़ दिया उन्होंने काम। बहुत पहले की बात है, बिल्कुल छोटे छोटे थे तो वो उन्होंने वो शुरू किया गुजरांवाला, जिनकी वजह से बारबेक्यू में मशहूर हो गया। अच्छा। उसके बाद हर गली हर यही जो रेडियां थी ना, कुछ अरसा गुजरने के बाद जब वो रेडियां चल पड़ी तो वही रेडियां जो थी वो फिर दुकानों में और रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट हो गई। कुछ जगहों पे दुकानें ही हैं, हाजी अल्लाह रखे ने दुकान ही खोली, रेडियो पे भी था, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब इतना ज्यादा ये फैल गया है, मेरा ख्याल है कुछ डॉक्टरों ने भी मेडिकली भी इसको बताया है कि ये इसकी असल में कभी गौर करो, जो इंसानी तारीख को अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाके देखो तो जो पुराना हमारा कुकिंग जो है जी पहले वक्तों में वो यही हुआ करती थी। पहली बात तो ये है कि बारबेक्यू में सिर्फ नमक डाला जाता है असूली तौर पे जी। फिर बारबेक्यू सिर्फ कोयले पे या लकड़ी पे पकाया जाता है, उसी को बारबेक्यू कहते हैं ना। तो ये हमारे बलोचिस्तान में राजान एक तरीका वो भी बारबेक्यू का है और वो आज भी बलोचिस्तान में बहुत शौक से खाते हैं। वो पत्थरों पे गोश्त को पकाते हैं, पहले पत्थरों को गर्म किया जाता है, अच्छा, और उसके ऊपर गोश्त रखा जाता है, फिर ऊपर गर्म पत्थर रखे जाते हैं। तो पत्थरों की हीट से
पहले पत्थर गर्म किए जाते हैं, जाहिर है कोयला उसमें भी इन्वॉल्व है। हाँ जी। तो क्या लाजवाब चीज बनती है। तो राज़ान जो है ये भी पुरानी कदीम तरीन शक्ल है यानी खाना पकाने की, और आज तक वो राइज है। तो इसके नुकसानात भी बहुत कम है ना, इसमें घी नहीं पड़ता, बहुत कम, ना होने के बराबर इसमें घी इस्तेमाल बहुत ज्यादा है इसमें। ये तो अब हमने आके इसको मैरिनेशन के नाम पे इसमें तरह तरह के मसाले लगाने शुरू कर दिए, वरना बारबेक्यू का तो मजा ही तब है कि जितना वो सादा रहे, कम मसाले हो, उतना ही वो मजेदार होता है। सॉरी सर, आपने इस डिश का क्या नाम बताया? राज़ान। पाजी ये फोल के खाना, पिछली भी 2 पत्थर नगा गए सो। रमजान तुमने खाया रमजान? ये पत्थरों पे पकता है, पत्थरों पे पकता है। अच्छा एग्जैक्टली के दिल पत्थर होते जा रहे हैं। ओए होए क्या फलसफा बयान किया है। फलसफा बयान करता है, खाना नहीं छाड़ता। उसने खाने में भी फलसफा डाल दिया। अच्छा ये जो राज़ान है इसको तो शायद दुनिया ने जो सबसे कदीम तरीन तरीका है उसके तौर पे तस्लीम नहीं किया, लेकिन जिसको तस्लीम किया गया है वो पीरू, जिसका हम शकरकंदी और आलू की अकसाम के हवाले से भी एक दफा जिक्र कर चुके हैं। पीरू में पांचा मांका, ये भी एक बारबेक्यू का तरीका है, वो भी कमोबेश ऐसा ही है कि वो पत्थरों पर पकाया जाता है। उसको उन्होंने तस्लीम किया है दुनिया ने कि ये सबसे पुराना जो है ये बारबेक्यू का अंदाज है। अच्छा तो एक बात बताओ, ये जो बाइडन साहब आए हैं ना, जो भी नया अमरीकी सदर आता है ना, जो और बहुत सारी वो तकरीबात होती हैं और बाज़ रसूमात होती हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, उसमें ये भी है कि जो भी नया अमेरिका का सदर आता है ना, वो सबसे पहले एक बारबेक्यू पार्टी देता है, जो अभी तक जो बाइडन साहब ने नहीं दी। और हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जब भी दे गोगा जी को जरूर बुलाएं। शायद ट्रंप जांदी यारी सीखा चुक के ले गया, कैसा पागल ही था, उससे मैं सीखा ही साथ ले गया। क्या करता है फिर बारबेक्यू? बारबेक्यू एक तो डिश का भी नाम है और बारबेक्यू ज़रा पार्टी का भी नाम है। आओ बारबेक्यू करते हैं। तो अगर आप बारबेक्यू का जरा इसकी रूट्स जरा ट्रेस करें ना, तो ये बारबाकुआ, ये स्पेनिश वर्ड है बारबाकुआ, वहां से बिगड़ के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ शक्लों में चला गया, फिर नाम भी इस्तेमाल होता रहा। लेकिन आज भी कहा जाता है कि बारबेक्यू जो है वो खाने पीने के हवाले से सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है खाना खाए जाने का बारबेक्यू। और 42% जो बारबेक्यू है वो बड़े गोश्त का होता है। गोगा जी याद रखे, आप उस दिन नाक मुंह चढ़ा रहे थे ना जब बड़े गोश्त पे, 42% जो है वो बड़ा गोश्त लोग खाते हैं बारबेक्यू में। अच्छा हाँ जी। अच्छा दुनिया के अक्सर मुल्कों में मैंने देखा है कि सयाहती मकामात पे हुकूमत ने छोटे छोटे बारबेक्यू स्पॉट्स बना के दिए हुए हैं पब्लिक को। वो रखना क्या होता है, छोटी सी मतलब आग जलाने के लिए अंगीठी बना के दी हुई ना, और हुकूमत ने क्या करना है। और यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी मुझे याद है इस्लामाबाद में मारगला हिल्स में बना के दी थी हुकूमत ने, CDA वालों ने शुरू किया था। लेकिन वही मतलब बाज़ जगह पे अगर पहले तो हुकूमत कुछ करके नहीं देती, अगर कुछ करे तो फिर आवाम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ बाद नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बारबेक्यू स्पॉट्स बनाए गए थे, लेकिन वही कि वो जितनी आग अंदर जलाते हैं अंगीठी के उतनी बाहर जलाते हैं, जिससे दरख्तों को जंगलात को आग लगने के वाक़यात पेश आए, फिर ये सिलसिला बंद कर दिया गया। हालांकि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप दोस्त मिल के थोड़ा बहुत आप कंट्रीब्यूट करें और शानदार बारबेक्यू पार्टी खास तौर पे सर्दियों में तो बड़ी नेमत से कम नहीं है। असल में ये इस तरह के हादसात आग वगैरह लगने के ये हमारे जैसे मुल्कों में ही होते हैं, वरना ये जो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उधर तो उन लोगों ने मुख्तलिफ स्पॉट बना लिए हैं बारबेक्यू के, और उधर उन्होंने आग का, चूल्हे का, अंगीठियों का, बैठने का, हर चीज का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह के वो अमेरिका के अंदर हर जगह के ऊपर, हर पिकनिक पॉइंट पे, हर सैरगाह के करीब बारबेक्यू का इस तरह बंदोबस्त किया गया है। और फिर देखने वाली मजे की चीज ये होती है कि वो हमारे वाला हिसाब नहीं होता कि आप किसी पिकनिक पे गए हैं, किसी स्पॉट पे गए हैं और वहां पे गंद डाल के आ गए। नहीं नहीं नहीं, वो जितनी मेहनत के साथ बारबेक्यू करके खाते हैं उससे ज्यादा मेहनत के साथ फिर दोबारा उस सारी जगह को साफ करते हैं, बेहतरीन साफ करके अगले किसी पार्टी के लिए, अगले किसी फैमिली के लिए बेहतरीन तैयार छोड़ के फिर जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन। अब हमारे यहाँ तो अगर कहीं ऐसे पिकनिक स्पॉट बनाए जाए, बारबेक्यू स्पॉट बनाए जाए, तो उसके बाहर या उसके करीब ही गोगा सब्ज चोगा और मनके डाल के बैठ जाता है और कहता है जी मज़ार है पीर खाई सरकार का और वहां पे हिस्सा मांगता है। और जे कभी ये है कि भाई जेड़ियां हड्डियां सुटियां जे चुको भी तो कहता मेरे को नीवा नहीं होया जाता।
खाइए ना ले आए विच पेट हाइल हो जाता है, नीमा किथों होया जाए। अच्छा, तो एक दिलचस्प बात हो, अभी हम अमेरिकी सदर की बात कर रहे थे बारबेक्यू के हवाले से, तो हमारे यहाँ जैसे मैंगो डिप्लोमेसी थी, जनरल शाहउल अब भी है, आम भेजा करते, नहीं दूसरे मुल्कों को आम भेजा करते थे। तो अमेरिका का एक सदर था 60s में, मिड 60s में, लिंडन बी जॉनसन, उसने बारबेक्यू डिप्लोमेसी की थी। वो मुख्तलिफ मुल्कों के सदूर को, वज़राए आज़म को बारबेक्यू पार्टीज पे बुलाया करता था, और मैक्सिको और जर्मनी के साथ अमेरिका ने, लिंडन बी जॉनसन ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो इसी बारबेक्यू डिप्लोमेसी के जरिए बेहतर किए थे। और जिस जिस मुल्क का सदर बूढ़ा था उसके दांत हिले हुए होते थे, वो फिर बारबेक्यू डिप्लोमेसी में अपना अपना घरों गोगा लैके जाते। जिस तरह होंदा ना जी कि नाल अपना तुसी टिफन लै गए हो या नाल अपना बर्तन लैके गए हो, इस तरह वो अपना साथ गोगा ले जाते। खुद वो बुजुर्ग सदर को गोल बोटी मुंह में डाल के उसके साथ खेलता रहता था और गोगे को इशारा कर देता था, मका दे 1.5 घंटा ही। लेकिन जो मुल्क भी दावत देता था ना बारबेक्यू डिप्लोमेसी के जरिए ताल्लुकात अच्छे करने की, वो कहता था कि जी ताल्लुकात अपनी जगह पर गोगे नू नाल नहीं लेना। नहीं तो जाके बाबा झूठ बोल देता था, गोगा नहीं है, मेरी चिथन वाली मशीन है। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। और मोबाइल खोलने वाले पेचकस शौक से खाया पिया जा सकता है, किसी की जिंदगी के साथ खेला नहीं जाता। वाह 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 वाह, क्या अच्छी मिसाल दी है। मेरी बांह ठीक होंगी तो मैं कसोन कट मारना। नाज़रीन, ऑफिशियली तो पतंगबाजी पर पाबंदी बहरहाल बरकरार है, लेकिन पतंगबाज हैं कि बाज ही नहीं आ रहे। आज हस्बे हाल के कटहरे में ऐसा ही एक जिद्दी और हट दरम किस्म का पतंगबाज खड़ा है। आइए इससे बात करके ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये इंसानी जिंदगियों को क्यों दाव पे लगाने पे तुले हुए हैं। जी जुनैद, अगर मुझसे पूछना तो नरम से नरम लफ्ज मैं ये इस्तेमाल करूंगा कि हमारे मुआशरे का इस वक्त जो बेशरम तरीन आदमी है ना, वो ये है। मतलब जब वो तस्वीर लगती है अखबार के ऊपर या मीडिया के ऊपर आती है, ये चैनल वगैरह पे, और वो गर्दन कटी हुई और अंदर से खून निकला हुआ, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग भी तो ये तस्वीर देखते होंगे, उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हमने पतंगबाजी नहीं छोड़नी। और सर जी, चंद काली भेड़ों की वजह से इतने बड़े शौक का बेड़ा गर्क तो ना करें हजूर। सबसे बुद्धि दलील है इन लोगों की, चंद काली भेड़ें, कुछ लोग धाती तार का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये हर साल दर्जनों वाकयात किस तरह पेश आते हैं। बाबूजी, ये उनसे पूछे जो बगैर मांझे के केमिकल वाली डोर उड़ाते हैं। हम तो उस्तादों के शागिर्द हैं, पतंगबाजी भी बाबूजी उस्तादी शागिर्दी की मेरी खेल। बात सुनो कि ये हम कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे ये पता चल सके कि कौन सा बंदा जो है वो धाती तार से उड़ा रहा है पतंग और कौन सा नॉर्मल तार से, कैसे पता चलेगा? और दूसरी बात यार जो पहली इसने की है कि शौक है ये, यार ये शौक है, ये फर्ज नहीं है, या ये जरूरत नहीं है। खुदा का खौफ खाओ। एक तरफ अगर किसी को चंद काली भेड़ों की वजह से अगर एक जान भी चली जाती है साल में, तो फिर क्या ये शौक स्टैंड रहता है? मुझे ये बताओ जरा, कुछ थोड़ी सी शर्म खाओ खुदा के वास्ते, क्यों इस तरह जिद लगा के बैठे होते हो तुम? और मोबाइल खोलने वाले पेचकस शौक से खाया पिया जा सकता है, किसी की जिंदगी के साथ खेला नहीं जाता। वाह 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 वाह, क्या अच्छी मिसाल दी है। मेरी बांह ठीक होंगी तो मैं कसोन कट मारना। यार मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी मिसाल है, मोबाइल खोलने वाला पेचकस। नहीं तो ये शौक से खाया पिया ही सिर्फ जाता है। कभी नहीं इसने कहा कि शौक से तालीम हासिल की जाती है, कभी नहीं इसने कहा कि शौक के साथ माँ बाप की खिदमत की जाती है, कभी इसने नहीं कहा कि शौक के साथ सफर किया। शौक से खाया पिया जाता है। जैसी उसकी सेहत है उसको यही मशवरा देना चाहिए। ये तुम्हारी बात ठीक है। वैसे अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कंत चमड़ी बोटी का पिंडा। और बाबूजी खुदा का नाम है,
पहले ये कौम खुशियों से तरसी हुई है और ये खुशी तो हमसे ना छीने। और तुम्हारी इस पतंगबाजी की वजह से किसी न किसी घराने के चश्मो चिराग का जब गला कट जाता है और वहां पे सारी जिंदगी के लिए सफे मातम बिछ जाता है, उसका क्या करना है? तुम्हारी इस झूठी और फजूल सी खुशी को देखें, वो ना देखें कि एक जान जा रही है। कितने बेशर्म लोग हो तुम, हद हो गई है यार। और थोड़े आपके पास खेल है, अगर आप इसको खेल समझ के या खुशी समझ के या एक एक्सरसाइज समझ के ही करना चाहते हो तो और थोड़े हैं जिसमें आप लोग महफूज रहो और दूसरों को भी महफूज रखो। खुद भी आप अपनी जान का भी रिस्क लेते हो और लोगों की जानों को भी रिस्क में डाल देते हो। किस तरह ये अंदाजा लगाया जाए या किस तरह इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए कि बंदा बेचारा आगे अपने पुत्र को भाग के जा रहे है मोटरसाइकिल पे और आप लोगों की डोर की वजह से उसके बच्चे का गला कट गया या उसका अपना गला कट गया, कैसे इसको रोकें और किस तरह इसका को बंदोबस्त करें? बताओ जरा मुझे। बोलो 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 बोलो, जवाब दो। बाबूजी ये मौसम बहार के ही सीजन में आती है, वो स्कूटर के ऊपर एक उल्टा तार का यू लग जाता है, उससे वो स्कूटर वाला भी सेफ रहता है और हमारा भी वो जो देने वाला। शाबाश शाबाश, यानी लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो अपनी बाइक्स पे लगा लें, वहां पे बैरियर लगवा लें, तुम लोग अपना 2 टके का शौक ना छोड़ो। नहीं जी नहीं, चलो ये तो बैरियर लग गया, जो पैदल जा रहे हैं वो क्या करें? ओ चलो वो अपने हाथ से एरियल फाड़ के तो जान। और नहीं जी नहीं, आज तक मोटरसाइकिल सवार हमारे यहाँ कितने फीसद लोग हैं जो हेलमेट पहनने के लिए तैयार है और तुम्हारी डोर से बचने के लिए वो एक स्पेशल अरेंजमेंट करें। ओ बाबूजी लाखों लोगों का रोजगार है और करोड़ों रुपया सर्कल में आता है बाबूजी। ये पतंगबाजी के साथ जी जी। तो मंशियात बेचने वाला अगर ये कहेगा तो उसकी बात मान ले। बताओ ना जरा मुझे, ये डाकू इस तरह की बात करेंगे तो मान ले उनकी बात? वो भी करोड़ों के अरबों के डाके मार रहे हैं रोजाना, क्या करें? उनको इजाजत दे दी जाए? कोई शर्म करो, को हया करो, दलील वो दो जो मान लेने वाली हो। एक तरफ तुम्हें बता रहे हैं कि इंसान की जान चली जाती है, दूसरी तरफ तुम फजूल फजूल सी बातें कर रहे हो। देखो ईमान से ठीक लीपो गुटी जैसा मुंह है सर आपको पता है लीपो गुटी का? मैं फिलाडेल्फिया से जुनैद साहब अच्छा भला है, छोटी बैटरियों का कारीगर सी, पता नहीं केड़े शौकां दे च पै गया है। और सर पतंग लूटने के लिए छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे अन्यवाह दौड़ते हैं सर। हाँ जी, वो वखरे एक्सीडेंट, ये गले कटने वाले वखरे एक्सीडेंट, छतों से गिरने वाले अलग एक्सीडेंट, किसी जगह पे खैर की खबर इनकी है ही नहीं। इतना घटिया और फजूल किस्म का ये शौक है और उसमें ये लोग स्टैंड ले रहे होते हैं। इसकी को एक चीज बताओ ना, इससे सेहत अच्छी होती है। हाँ जी, हाँ जी। या इससे आप कहें जी कि इंजन करना डांड बांध देने या आप कहें जी कि जितना पेचा लगता है उतना मोहब्बत वादी है। कोई एक चीज ही दस दो तो बंदा कहता है कि नहीं यार चलो ये तो बड़ी अच्छी चीज। कोई इसमें खूबी बताओ तो अभी हम कहते हैं जी कि आप जो कर सकते हैं करें, माँ सिवाय इस बात के जी ये करोड़ों रुपए का कारोबार है, ये जी अरबों रुपया सर्कल करता है, सर्कुलेट कर रहा है इसमें। भाई ये कारोबार या पैसा कमाना और 36 चीजों से हो सकता है। हाँ जी। जिसमें इंसानी जान को कोई खतरा ना हो। जी बिल्कुल। जिसमें इंसानी जान को खतरा है वहां पे लानत भेजो उस पैसे को, उस सर्कुलेट करने को। बाऊजी मावा अलहदा कल्पन डईयां हुंदियां ने कि वे जेदिया मैनू सरफ लिया दे, मैं मशीन लाउन तो बैठी हां। चलो जेदा होते हुए तो तू लिया दे तू केड़ा लैपटॉप खोल के बैठा उन्हें। अच्छा पतंगबाजी तो इसने अब शुरू की है ना, पहले लोग इससे तलावे डालने के लिए पतंग में सुराख किया करते थे। देखो घूमिया इंजे जिवें सस ने तवीज पाए हैं। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, तस्वीरों और वीडियोस में आज आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जो हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे यहाँ हैवानों पे, जानवरों पर बहुत ज़्यादा बेदर्दी रवा रखी जाती है, लेकिन ये भी एक पाकिस्तानी है। ये देखें, गधा गाड़ी का मालिक है और बारिश में वो खुद भी महफूज है और अपने गधे को भी उसने कवर किया हुआ है। उसने कोई गधे की हमदर्दी में नहीं प्लास्टिक ऊपर डाला, उसको ये है कि बारिश वाला पानी को लक च वड़ गया तो पिछपिछा हो जाएगा गधा। फिर आपको पता है गधा नरम हो जाए तो उसने सामान क्या खींच बहुत अच्छे। वैसे मजाक के अलावा इस बंदे को दाद देने को जी चाह। सही दाद तो दे दें, लेकिन उन्हें तो फेरा नहीं होना जिन्हें तो कपड़ा लग गया। हेलो
ਯਾਨੀ ਦਾਦ ਦੇਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਉਹ ਭਾਗੌਰੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਫੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ। और जुल्फी पीछे दुकानों से पता चल रहा है कि सौरे भी ऐसे ही हैं, वो कड़े असकरी टेंशन रहते हैं। मैं इस गधे गाड़ी वाले से कहता हूँ उतार दो यार प्लास्टिक, ये कौम अच्छे काम डिजर्व ही नहीं करती। मैं कहने लगा संग तस्वीर बदल दियो कि तेरे खोती रेड़ी वाला कहे कहे और जुगत करनी है कि मैं ले जाऊं। अच्छा भाईजान, दौरे जदीद में अब फल और सब्जी ये काटना भी एक आर्ट है और इसको बकायदा इसकी तालीम दी जाती है। ये देखें हमारे यहाँ अक्सर सयाहती मकामात पे लोगों को इंतबाह किया जाता है, बोर्ड लगे होते हैं गंदगी ना फैलाएं, यहाँ सफाई का ख्याल रखें, लेकिन कान पे जू नहीं रेंगती। ये देखें जरा जी, एक और वीडियो देखें जो बहुत पॉपुलर मौजू है कि जी अगर शौहर का मोबाइल बीवी के हाथ लग जाए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि दुनिया में हर बच्चे की पैदाइश इस बात का ऐलान है कि खुदा अपने बंदे से अभी मायूस नहीं है। बहुत अच्छा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।